Hello students, now we will resume with page number 53 as we have been reading chapter number 6, the Brownian version, which is the syllabus of class 11th. So we have already read that Frank, who is a young teacher in science, he has started a conversation with a young boy named Taplow. Taplow has bitter feelings for Mr. Crocker Harris. Mr. Crocker Harris is another teacher. He teaches classical literature. So Taplow, who expresses his bitter feelings before Frank, then Mr. Frank, he just provokes or encourages Taplow to disobey Mr. Crocker Harris. Mr. Crocker Harris is very honest and dutiful person. Even he has called Taplow for doing extra work on the last day of term. So Taplow is really shocked when Frank asks him to go from there because Mr. Crocker Harris is late by 10 minutes. So with shock he says that he couldn't cut, कि वो जा नहीं सकता वहाँ से. Cut the crop, Mr. Crocker Harris. I shouldn't think it's ever been done in the whole time he has been here. Then Taplow expresses this, he just tells this कि वो ऐसा सोच भी नहीं सकता जब तक कि मिस्टर क्रोकर हैरिस वहाँ नहीं होते. तो पूरा टाइम जब तक वो यहाँ पर है, जब तक मिस्टर क्रोकर हैरिस वहाँ नहीं आ जाते, वो इसे ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए. God knows what would happen if I did. और वो कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो भगवान ही जानते हैं कि क्या होगा. He would probably follow me home or something. कि मिस्टर क्रोकर हैरिस उसके घर तक आ जाएंगे या ऐसा कुछ करेंगे. Frank, I must admit I envy him the effect he seems to have on you boys in the form. You all seem scared to death of him. So Frank admits that he envious Mr. Crocker Harris. कि उसको मिस्टर क्रोकर हैरिस से थोड़ी ईर्ष्या है. तो जिस तरीके का इफेक्ट प्रभाव उन बॉयज़ पर है मिस्टर क्रोकर हैरिस का, जितना ज़्यादा वो उससे डरते हैं, तो इस बात से फ्रैंक को जेलसी है. What does he do? Beat you all or something? फ्रैंक पूछते हैं टेप्लो से कि वो क्या करते हैं, तुम सबको पीटते हैं या कुछ और, तभी तुम बच्चों में इतना डर है. टेप्लो, God Lord, no, he's not a sadist like one or two of the others. टेप्लो कहते हैं भगवान नहीं, वो कोई सैडिस्ट नहीं है बाकी एक दो की तरह. So sadist is a person who finds pleasure by giving others pain. Giving pain to others. Frank, I beg your pardon. माफ कीजिएगा, फ्रैंक उसकी बात को समझ नहीं पाते हैं. Taplow, sadist sir is someone who gets pleasure out of giving pain. So Taplow thought Mr. Crocker Harris did not understand what a sadist was. But actually Frank was asking about one or two of others, one or two teachers, जिनके बारे में टैप्लो कह रहा था कि एक दो और टीचर्स ऐसे हैं जो कि बच्चों को पीटते हैं तो उनको अच्छा लगता है. बट टैप्लो को लगा कि शायद वो सैडिस्ट का मीनिंग नहीं समझे. टैप्लो, सैडिस्ट सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन. सर सैडिस्ट वो होता है जो दूसरों को पेन दे के खुशी जिसको मिलती है. फ्रैंक, इंडीड, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर्स. फ्रैंक कहता हाँ फाइनली, लेकिन मैं समझा कि तुम कह रहे थे कि कुछ और मास्टर्स, यानी कि कुछ और मास्टर्स हैं ऐसे जो बच्चों को पीट कर खुश होते हैं, उनको अच्छा लगता है. टैप्लो, वेल ऑफ कोर्स दे आर सर. हाँ सर बिल्कुल हैं ऐसे. आई वोंट मेंशन नेम्स, मैं नेम नहीं बताऊंगा, जिक्र नहीं करूंगा उनका. बट यू नो देम एज वेल एज आई डू. लेकिन आप भी उनको उतना ही जानते हो जितना कि मैं. Of course, I know most masters think we boys don't understand a thing. So Taplow says that there are many masters who think that the boys don't understand anything. But sir, you are different. But he appreciates Frank by saying that he was different. You are young, well, comparatively. Taplow calls Frank a young teacher in comparison with others.
एनीवे एंड यू आर साइंस, कि आप साइंस पढ़ाते हो, यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म इज। तो आपको तो ज़रूर पता ही होगा सैडिज्म क्या होता है, जो दूसरों को पीड़ा दे के खुश होता है। फ्रैंक आफ्टर अ पॉज, फ्रैंक उसकी बात पर विचार करके, गुड लॉर्ड व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू, कि हमारे स्कूल्स कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है बच्चों का, क्या संस्कार मिल रहे हैं उनको। टैप्लो एनीवे द क्रॉक इजंट अ सैडिस्ट, टैप्लो बोलता है कि क्रॉक जो है यानी कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस वो सैडिस्ट नहीं है, बिकॉज सैडिस्ट हैज़ फीलिंग्स एट लीस्ट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ही वुडंट बी सो फ्राइटनिंग इफ ही वर, कि अगर वो सैडिस्ट होते तो इतने डरावने ना होते, बिकॉज एटलीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स, कम से कम इसे ये तो दिखता कि उनको कुछ तो फीलिंग्स है, बट ही हैजंट, लेकिन उनमें तो फीलिंग्स है ही नहीं। ही इज ऑल शिवल्ड अप इनसाइड लाइक अ नट, वो तो अंदर से ऐसे नट की तरह सिकुड़े हुए हैं। एंड ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम, और लोगों का उनको पसंद करने से भी उनको नफरत है, ऐसा लगता है। दिस ऑल्सो shows that Mr. Crocker Harris does not like flattery. That's why people who like him, he doesn't like this, because he doesn't like flattery. He knows very well that anybody appreciates any other person because of a selfish reason. It's funny that I don't know any other master who doesn't like being liked. टैप्लो बताता है कि मैं किसी और ऐसे टीचर को नहीं जानता जिसे अगर कोई उनको पसंद करे तो ये बात पसंद ना आए, लेकिन क्रॉकर हैरिस ही डजंट लाइक सो, उन्हें नहीं पसंद है ये चीज़ें कि उन्हें कोई पसंद करे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता उल्टा। तो इसे शो होता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस सेल्फिश नहीं है, वो एक तरह से फ्लैटरी पसंद नहीं करते। फ्रैंक एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डजंट यूज दैट फॉर हिज ओन पर्पजेज, मन से फ्रैंक भी ये बात जानते हैं कि कोई भी जो बॉय है वो अगर टीचर को पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं तो अपने मतलब के लिए। कहते हैं कि मैं किसी ऐसे लड़के को नहीं जानता जो इस तरह की बात की टीचर को अप्रिशिएट करना अपने पर्पज़ के लिए यूज़ ना करता हो। टैप्लो बैट्स इट्स नेचुरल सर बट नॉट विद द क्रॉक, सर ये तो नेचुरल है, होता ही है, बॉयज़ करते ही हैं ऐसा, बच्चे करते ही हैं, टीचर्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो अपने फ़ायदे के लिए। हाँ, लेकिन क्रॉक के साथ ऐसा नहीं है। फ्रैंक emphasizes on this that he should call his full name, his teacher's full name, Mr. Crocker Harris. Taplo, Mr. Crocker Harris. The funny thing is that in spite of everything, I do rather like him. This is very important point. Even Taplo, from the beginning, he was expressing his bitter feelings towards Mr. Crocker Harris. But here he accepts this, that instead of all the things he like him, इन सब चीज़ों के बावजूद भी हंसी वाली बात ये है कि वो पसंद करता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस को। सो दिस इज द मेन फैक्ट स्टूडेंट्स। इवन टैप्लो एंड स्टूडेंट्स लाइक टैप्लो, दे डोंट लाइक देयर टीचर्स हु आर स्ट्रिक्ट, हु आर अनपॉपुलर, बट इंस्टेड ऑफ दैट इफ द टीचर इज गुड, he has good virtues, he has good qualities, he is dutiful, honest, so inside those students they like that teacher, the qualities of that teacher. So here also Taplo accepts this fact that he likes Mr. Crocker Harris. I can't help it, कहते मैं रोक ही नहीं सकता इस चीज़ को, and sometimes I think he sees it, कभी कभी तो मुझे लगता है कि उन्हें वो ये बात देख लेते हैं कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। That seems to shrivel him up even more, जिससे कि वो और ज़्यादा अंदर से सिकुड़ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, और ज़्यादा एक तरीके से इमोशनलेस हो जाते हैं। फ्रैंक, आई एम श्योर यू आर एग्जिग्रेटिंग। फ्रैंक कहते हैं मुझे लगता है कि तुम, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। टैप्लो, नो सर आई एम नॉट। इन्फॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जॉक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे सर ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार की बात है, एक दिन की, मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने अपना कोई क्लासिकल जोक अपना सुनाया। ऑफ कोर्स नोबडी लाफ्ड, नेचुरली कोई नहीं हंसा, बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट, क्योंकि कोई समझा ही नहीं, माई सेल्फ इंक्लूडेड, मैं भी नहीं समझा और मैं भी नहीं हंसा। स्टिल आई न्यू ही हैड मेंट इट एज फनी, सो आई लाइक, लेकिन मेरे को लगा कि शायद वो उसे फ़नी मानते होंगे उस जोक को, तभी तो उन्होंने सुनाया, तो मैं हंस दिया। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस, एक कॉमन पोलाइटनेस के नाते मैं हंस दिया।
कि चलो ठीक है, सबने सुनाया जोक, तो एक पोलाइटनेस शो करने के लिए। आई एम फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम, मुझे दुख हो रहा था उनके लिए, फॉर हैविंग मेड अ पुअर जोक, इतना बुरा जोक सुनाने के लिए, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आया, कोई समझा ही नहीं, बिकॉज इट वॉज अ क्लासिकल जोक। नाउ आई कांट रिमेंबर वट द जोक वॉज। कहते सर अब तो मुझे वो याद नहीं है बात क्या थी, क्या जोक था वो, लेकिन आप जस्ट सपोज आई मेक इट, कि मान लो मैंने वही जोक सुनाया आपको अभी, नाउ यू लाफ, तो आप हंसो सर, कि मान के हंस लो, वो तो मुझे याद तो नहीं आ रहा क्या बात थी वो। टैप्लो इन अ जेंटल थ्रोटी वॉइस, इट मीन्स ही विल इमिटेट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। The words of Mr. Crocker Harris are put in inverted commas. Taplow, you laughed at my little joke, I notice. What did Mr. Crocker Harris say? He said, Taplow, तुम मेरे छोटे से जोक पे हंसे, मैंने नोटिस किया. I must confess that I am pleased at the advance your Latin has made. मैं बड़ा खुश हूँ कि तुम्हारी लेटिन है वो कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि लेटिन में इट वॉज अ क्लासिकल जोक. सिंस यू सो रेडिली हैव अंडरस्टूड व्हाट द रेस्ट ऑफ द फॉर्म डिड नॉट. तो जैसा कि तुम्हें इसको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया जो बाकी की क्लास को समझ में नहीं आया. परहैप्स नाउ यू वुड बी गुड इनफ टू एक्सप्लेन इट टू देम. तो शायद अब तुम इतने तो तुम्हें आ गया होगा समझ में. यू वुड बी गुड इनफ टू एक्सप्लेन इट टू देम, कि इतने तुम्हें अच्छे से आता है सब कि तुम इसको दूसरों को एक्सप्लेन कर सको. सो दैट दे टू कैन शेयर योर प्लेजर, ताकि वो भी तुम्हारा ये प्लेजर एंजॉय कर सकें, वो भी तुम्हारे इस आनंद में भागी हो सके. तो कहते हैं टैप्लो ने बताया ये फ्रैंक को कि इस तरह से उन्होंने मुझे उस दिन बोला था. इन दिस वे ही वॉज फीलिंग लाइक दैट. When they were just discussing about it, they were making fun of Mr. Crocker Harris. Suddenly, the door upright is pushed open. जो राइट साइड का जो दरवाजा था वो धकेल के खुला. And Millie Crocker Harris enters. और तभी मिली क्रॉकर हैरिस ने एंटर किया. She is a thin woman in her late 30s. Actually, Millie Crocker Harris is the wife of Mr. Crocker Harris. She is a thin woman in her late 30s. वो एक दुबली पतली औरत है लेट 30s में, मीन्स हर एज इज around 37, 38. Rather more smartly dressed than the general run of schoolmasters. Normally school masters की वाइफ जिस तरह कैसे ड्रेसअप होती है उनसे थोड़ा अच्छे से ज़्यादा तरीके से स्मार्टली ड्रेस्ड है. शी इज़ वियरिंग अ केप. उन्होंने क्या पहना हुआ है? केप, ओवरकोट पहना हुआ है, बिकॉज शी केम फ्रॉम आउटसाइड. एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट, और हाथ में एक शॉपिंग बास्केट ली हुई है. She closes the door and then stands by the screen watching Taplow. उस दृश्य को देखकर वहाँ पर जैसा कि वो दरवाज़ा बंद करती है और आती है वहाँ पर खड़ी हो जाती है, टैप्लो और फ्रैंक को देखती है. So few seconds before they notice her, Frank and Taplow, they were discussing, they were talking about Mr. Crocker Harris, making fun of him. But when they realize that Mrs. Crocker Harris has come there, इवन उन्होंने अभी उसको नोटिस किया है, शायद वो कुछ समय से वहाँ पर आ गई थी, अभी कुछ ही सेकंड पहले फ्रैंक ने और टैप्लो ने उनको नोटिस किया है. तो इवन दे आर नॉट कन्फर्म्ड वेदर शी हैज़ हर्ड एवरीथिंग और नॉट. दे हैव डाउट अबाउट इट. फ्रैंक सेज, कम अलोंग टैप्लो, मूव स्लोली अबाउट द डेस्क. धीरे से डेस्क की तरफ स्लोली मूव करते हुए कि टैप्लो आओ इधर, कम अलोंग. Don't be so selfish as to keep a good joke to yourself. इतने सेल्फिश मत बनो कि ये जोक है जो अच्छा ये बस अपने तक सुनाओ. Here he pretends that Taplow was just making a joke, and that's why they were laughing. So he doesn't want to show that they were making fun of Mr. Crocker Harris. Tell the others. सबको सुनाओ, बाकियों को भी. He breaks off suddenly. अचानक से बोलता है ये बात. Noticing मिली को नोटिस करके, क्योंकि उसको डाउट है कि कहीं मिली ने सब सुन ना लिया हो, और लॉर्ड और मन में भयभीत भी है कि कहीं मिली ने सब सुन नहीं लिया हो. फ्रैंक टर्न्स क्विकली. तभी फ्रैंक टर्न करता है. सीम्स इनफाइनाइटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली. और उसको एक इनफाइनाइट बड़ा असीम आनंद प्राप्त होता है मिली को देखकर. हियर दिस सेंटेंस शोज
that there is something between Frank and Millie. That's why Frank came to Millie's house. Even he knew that Mr. Crocker Harris was out. So instead of that, he came to Mr. Crocker Harris' house. That's why he finds Taplow waiting for him. And here he finds, it seems that he got infinite relief at seeing Millie. So he is very happy to see Millie. So maybe there is an affair between them. So here also it is shown that the person like Mr. Crocker Harris, who are so innocent, who are so dutiful, honest, they find cheating. They are cheated everywhere, even at school, even at in their personal affairs, etc. But clever people like Frank, they just makes benefit out of it. Frank, oh hello, Millie, without expression, hello. She comes down to the sideboard and puts her basket on it. Millie साइड बोर्ड के पास आती है और अपनी बास्केट उसके ऊपर रख देती है. Taplow moving up to left of Frank, whispering frantically. Taplow फ्रैंक के लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हुए, थोड़ा बनावटी तरीके से कानाफूसी करते हुए. डू यू थिंक शी हर्ड? आपको लगता है सुन लिया इन्होंने सब कुछ? फ्रैंक शेक्स हिज हेड कंफर्टेबली, थोड़ा कंफर्ट के साथ अपने सिर को शेक करते हुए, हिलाते हुए. मिली टेक्स ऑफ हर केप, मिली ने अपना ओवरकोट उतार दिया एंड हैंग्स इट ऑन द हॉल स्टैंड, और क्लोज स्टैंड पे उसको टांग देती है. देन फ्रैंक सेज आई थिंक शी डिड, कि हाँ मुझे लगता है कि शायद उसने सुन लिया. शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम, काफ़ी समय से वो खड़ी थी वहाँ पे. दे बोथ हैव डाउट दैट मिली क्रॉकर हैरिस हैज़ हर्ड एवरीथिंग. Taplow, if she did and she tells him, there goes my remote. कि अगर वो उन्होंने ऐसा किया है, सुन लिया, और वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस को बता देती हैं, तो मेरा तो रिजल्ट तो गया. फ्रैंक नॉनसेंस. ही क्रॉसेस टू द फायरप्लेस. कहते क्या बकवास, और फायरप्लेस को क्रॉस करके आगे चला जाता है. मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड. अब मिली जैसा कि उसने केप उतार दिया है और अपनी उस बास्केट को जो उसने साइड बोर्ड पे रखी थी, इट्स अ टाइप ऑफ फर्नीचर विच इज़ पुट विद द साइड वॉल, वहाँ से उस बास्केट को उठा लेती है और मूव्स अबव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट. टेबल पे रख देती है बास्केट को. मिली टू टैप्लो, वेटिंग फॉर माई हस्बैंड. मिली टैप्लो से पूछती है कि क्या वो उसके हस्बैंड का वेट कर रहा है. टैप्लो मूविंग डाउन लेफ्ट ऑफ द टेबल, टेबल की साइड लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हुए, आगे जाते हुए. यस, टैप्लो रिप्लाइज इन पॉजिटिव. मिली, ही इज एट द बर्सर्स एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम, कि वो बर्सर्स के यहाँ हैं बिकॉज दे हैव बीन लिविंग. मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज बीइंग गिवन प्रीमेच्योर रिटायरमेंट बिकॉज ही इज अनपॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स. सो ही इज एट बर्सर्स. तो बर्सर्स के यहाँ पे है. बर्सर जो एक तरीके का क्लार्क होता है कॉलेजेस में, तो शायद वो अपना सैलरी या अपना हिसाब किताब कुछ कराने गए हैं शायद से, क्योंकि वो जा रहे हैं. तो कहती है, मिली बताती है कि वो बर्सर के यहाँ है. माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम, और शायद उन्हें काफ़ी समय लगेगा वहाँ पे. इफ़ आई वर यू आई वुड गो. एंड शी सजेस्ट दिस टू टैप्लो दैट इफ़ शी वुड बी टैप्लो देन शी वुड गो, कि अगर वो टैप्लो की जगह होती तो वो शायद चली जाती, वेट नहीं करती. टैप्लो डाउटफुली, टैप्लो को थोड़ा सा डाउट होता है इस बात पे, बिकॉज ही इज अ किड. ही सेड मोस्ट पार्टिकुलरली आई वॉज टू कम. टैप्लो बताता है कि उन्होंने मुझे स्पेशली बोला था यहाँ आने के लिए. मिली, वेल व्हाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक. सो मिली सेज कि वो यहाँ से थोड़े टाइम के लिए, 15-1 मिनट के लिए क्यों नहीं चला जाता, वह वापस आ जाए. शी अनपैक सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट, और बास्केट में से कुछ चीज़ों को अनपैक करती है. हियर इट ऑल्सो शोज दैट शी वॉन्ट्स टैप्लो टू गो फ्रॉम देयर इवन फॉर 15 मिनट्स सो दैट शी कैन मीट फ्रैंक. टैप्लो, सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी. टैप्लो कहता है कि मान लो वो मुझसे पहले यहाँ पे आ गए तो, बिकॉज टैप्लो हैज सम डाउट्स अबाउट इट. मिली, स्माइलिंग, आई विल टेक द ब्लेम. स्माइल करके मिली कहती है कि मैं ब्लेम अपने ऊपर ले लूँगी. ही टेक्स अ प्रिस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट. बास्केट में से एक प्रिस्क्रिप्शन निकालती है,
स्लिप निकालती है जिसमें कुछ लिखा हुआ है. आई टेल यू व्हाट यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम. ये कहती कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम क्या करो, तुम उनके लिए काम कर सकते हो. टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप. ये प्रिस्क्रिप्शन ले जाओ और ये सामान, ये जो भी है केमिस्ट के पास, और ये दवाइयाँ बनवा लो. Taplow, all right, Mrs. Crocker Harris. Taplow accepts this and he's ready to go out for 15 minutes. Taplow कहता है ठीक है Mrs. Crocker Harris. He crosses towards the door upright. तो डोर राइट साइड के डोर से क्रॉस करके वो वहाँ से निकल जाता है. So in this way, Millie sends Taplow away. So students, in this chapter it is shown that even Mr. Crocker Harris is a strict teacher. He is very honest, dutiful, but he is not liked by other teachers, by his colleagues and by his students, and that's why he is unpopular. So goodness of anyone is not liked by others because other people can't follow the same rules. That's why students also don't like him because he's so strict and he's dutiful. That's why he's not liked by his colleagues also. Even he's being cheated by his own work. So good people have to pay a lot in life. Mr. Crocker Harris is a person of principles. Instead of that, he has to suffer. But inside Taplow, in his heart, he likes Mr. Crocker Harris. He accepts this fact. Okay, students. In next video we will resume with a new concept. Till then, thank you so much. If you like my video, then subscribe my channel. Thank you.